Namaste bachchon, hope you are all doing good. Today we are going to learn book exercise and solution for the lesson 14, part 14, Sundar Kaun. Sundar Kaun. Sundar mane beautiful. Kaun mane who is beautiful. Children, the lesson video is available in our channel. Please watch once and make use of it so that this book exercise will be very easy for you to understand. Okay ma'am? Yes. Now children, Abhyas Shabd Arth. Word meanings. Sarovar, Talab, Pond, Labalab, Pura, Bara, Hua, Full till brim. Parchayi, Chaya, shadow. Mugd, Mugd, Mohit, fascinated. Prashamsa, Tarif, praise. Trin, Tinka, a blade of grass. Shikari, Pashu, पक्षियों को मारने वाला, hunter. Mangal, Kalyan, auspicious. Children, some more meanings. Barasinga, एक तरह का 12 सींग वाले हिरन. Reindeer or antelope. स्वच्छ, soft. सौंदर्य, सुंदरता, beauty. कटका, आशंका, doubt. उलझना, फंसना, to get entangled. कठिन, मुश्किल, difficult. मजबूत, पक्के, strong. Children, we are going to see an idiom. मुहावरे माने idioms. सिर पर पैर रखकर भागना. सिर पर पैर रखकर भागना माने तेजी से भागना. पहुंच से बाहर होना, पकड़ में न आना. पहुंच से बाहर होना, पकड़ में न आना. ओके चिल्ड्रन? यस. तेजी से भागना माने टू रन वेरी फास्ट. ओके मैम. नेक्स्ट वन, पकड़ में न आना माने टू एस्केप from the danger. Okay. Now part both. प्रश्नों के उत्तर दो. Answer these questions. क, बारहसिंगा कहाँ रहता था? Okay. Where was the बारहसिंगा living? Okay. Where it was living. बारहसिंगा एक जंगल में रहता था. बारहसिंगा was living in a forest. जंगल माने forest. क, बारहसिंगा सरोवर पर क्यों गया? Why the reindeer went to the lake? बारहसिंगा सरोवर पर पानी पीने गया. The reindeer went to the lake to drink water. बारहसिंगा को कैसा पता चला कि उसके सींग सुंदर हैं? How does the reindeer knows that its horns are very beautiful? बारहसिंगा को पानी में अपनी परछाई देखकर पता चला कि उसके सींग सुंदर हैं. When the reindeer looks at the lake, the water was very clear, so it can able to see its shadow, that is the reflection in the water. Then it feels that its horns are very beautiful. Now children, गा, पाठ का वह अनुच्छेद पढ़ो जिसमें उसने अपने फम से सींग जाड़ी से निकाले. बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा. उसके मजबूत पैरों से जाड़ी टूट गई. उसने और जोर लगाया. जाड़ी जड़ से उखड़ गई. उसके सींग जाड़ी से छूट गए. बारहसिंगा सिर पर पैर रखकर भागा. अब वह शिकारी की पहुंच से बाहर था. उसने लंबी सांस ली. अपने पैरों का धन्यवाद किया. उसने कहा,
धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है. Children, this entire paragraph meanings or explanation is there in our lesson video. Okay ma? Day 2 video you can watch, or I will upload the full lesson video also, so that you can watch this explanation for this paragraph in that video. Okay children? Yes. Now na बारहसिंगा डर से क्यों कांपने लगा था. Okay, why it is got shivering? Because of fear. बारहसिंगा अपनी मृत्यु के डर से कांपने लगा था. It was having the fear of to save its life. Okay ना? Yes. Now बारहसिंगा किस पर मुग्ध हुआ और क्यों? Okay, children, this is लिखित part. Okay ना? First question का बारहसिंगा किस पर बहुत मुग्ध हुआ और क्यों? Okay, so on what it was very much impressed and why? ओके, बारहसिंगा अपने सींगों को देखकर मुग्ध हो गया क्योंकि उसे पेड़ की डालों की तरह चारों तरफ से फैले अपने सींग बहुत सुंदर लगे. चिल्ड्रन, द हॉर्न्स ऑफ द रेनडियर was very beautiful according to this reindeer. Why? Because it is spread like the branches of the trees and very beautiful also. Okay ma'am? Yes, the Barasinga was fascinated about its own horns because it spreads like a branches of the tree and looks very beautiful. Next children, का बारहसिंगा अपनी सुंदरता में किस कमी को देखकर उदास हुआ. Why the reindeer was sad to know that its beauty is lacking somewhere. बारहसिंगा ने अपनी दुबली पतली टेढ़ी मेढ़ी टांगों को देखा तो उसे लगा कि इनके कारण उसकी सुंदरता में कमी आ गई है और वह उदास हो गया. चिल्ड्रन, दुबली पतली माने थिन. ओके मैम? वेरी थिन एंड वीक. टेढ़ी मेढ़ी टांगों माने क्रोकेड लेग्स. ओके, तो उसे लगा, सो इट फेल्ट कि दैट इनके कारण, बिकॉज ऑफ दैट उसकी सुंदरता, दैट इज इट्स ब्यूटी में कमी, इट्स लैकिंग, और वह उदास हो गया. एंड इट बिकेम वेरी सैड. ओके चिल्ड्रन, दैट इज द बारहसिंगा बिकेम वेरी सैड ऑन सीइंग इट्स थिन एंड वीक एंड क्रोकेड legs which reduces its beauty. Okay ma? Yes. So it was very sad. Next question children, गा बारहसिंगा के सींग कहाँ फंस गए और वह उनसे कैसे निकला. Okay, where its horns got stuck and how it was escaped from that. बारहसिंगा के सींग एक झाड़ी में फंस गए. झाड़ी माने bushes. Okay ma? So its horns were stuck into the bushes. उन्हें छुड़ाने के लिए उसे जोर लगाया. So to get relief of it, it applied its full force. उसके मजबूत पैरों से झाड़ी टूट गई. Because of its strong legs, it can able to break the bushes. Okay, और उसके चिन छूट गए and its horns got relieved. Okay ना? So how the Barasinga escaped? It escaped with the help of its legs. Okay, because its legs are very strong. It can able to uproot the roots of the bushes and it escaped from the danger. Okay ma? Yes. Next, गा अंत में बारहसिंगा किसे धन्यवाद दिया. At last, to whom the Barasinga gave his thanks. Okay, अंत में बारहसिंगा ने अपने मजबूत पैरों को धन्यवाद दिया. So at the last, okay ma, at the end, the reindeer thanked its own strong legs. Okay, मजबूत पैरों माने strong legs. Next children, नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो. Complete the sentences. I'll read out the words. मजबूत, झाड़ी, घूमते घूमते, प्रशंसा, धन्यवाद.
मजबूत माने स्ट्रॉन्ग, जाड़ी माने बुश, घूमते घूमते माने रोम टू रोम, प्रशंसा माने प्रेस, PRAISE प्रेस, धन्यवाद माने थैंक्स. ओके मैम. Now I am going to read the sentence with the answer. का बारहसिंगा घूमते घूमते दूर निकल गया. Okay, the बारहसिंगा, it was roaming here and there and left the family and came very far away. Okay, का बारहसिंगा मन ही मन अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था. It was praising its own beauty in its mind. Okay, सौंदर्य माने ब्यूटी, प्रशंसा माने प्रेस. ओके, सो इट वाज प्रेजिंग इट्स ओन ब्यूटी इन इट्स माइंड. बारहसिंगा के सींग जाड़ी में उलझ गए. जाड़ी माने बुश. ओके, इट्स आर्म्स आर टैंगल्ड इन द बुश. ओके, उसके मजबूत पैरों से जाड़ी टूट गई. सो बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग लेग्स इट कैन एबल टू ब्रेक द बुशेस. उसने अपने पैरों को धन्यवाद दिया. सो इट गेव द थैंक्स. ओके, इट थैंक्ड इट्स ओन लेग्स because of that only it can able to escape from the danger. Now next exercise children. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, one word for meaning. बारहसिंग हो जिसके, that is बारहसिंगा. Now children, रंगीन पेंसिल से रेखा खींचकर मिलान करो. You can use the color pencil to make the match the word from the left side and right side. Okay ma'am? Yes. घनों पेड़ों से भरा स्थान, घने पेड़ों से भरा स्थान जंगल, फॉरेस्ट. ओके मैम. घर के सब लोग परिवार, फैमिली. जहाँ पढ़ने जाते हैं, विद्यालय, स्कूल. जहाँ इलाज के लिए जाते हैं, अस्पताल माने हॉस्पिटल. जहाँ पशुओं को रखते हैं, पशुशाला. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन, सभी स्वर क्रम से लिखो. स्वर माने बबल्स, आटो, आहा. ओके मैम. यस, राइट ऑल द बबल्स इन करेक्ट ऑर्डर. आ, हा, ई, उ, रु, री, ए, आई, ओ, औ, आहा. नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन, ये शब्द पढ़ो और सुंदर अक्षरों में लिखो. रीड एंड राइट इन ए गुड हैंड. ओके ना. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेस so that you will know the ru matra through these words. Okay, I'll read out the words. Mriga, drishti, trina, rishab, ritu, rishi. I'll tell the meanings also children. Mriga mane deer, drishti mane view or sight, trina mane grass, rishab mane ox, ritu mane season, rishi mane the saint. Next children, ab dekho. So children, this ru and ru ki matra, how we have to write. Here the varna vichhed is given. You can see this. Rishab, ru plus ish plus a plus ib plus a, rishab. Mriga, im plus ru, mru, ig plus a, ga, mriga. Trina, it plus ru plus in plus a, trina. Drishti, id plus ru plus ish plus it plus e, drishti. Mrityu, im plus ru plus it plus e plus u, mrityu. Now next exercise children, fourth one. अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द पढ़ो. अनुस्वार माने अम की मात्रा, अनुनासिक माने चंद्र बिंदु. ओके ना. सो अम की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर शब्द पढ़ो. कंप्लीट दीज वर्ड्स. ओके. जम गा ला जंगल, प्रशंसा प्रशंसा, सुम दा रा सुंदर, लंबी लंबी, मम गा ला मंगल. नौ चंद्र बिंदु. पाँव
वा पाँव, सा सा साम्स, ऊंची ऊंची, पा ऊंचा पहुंच, का पा ना कांपना. Okay ma? Now next children, make pairs of opposites. विलोम शब्दों माने opposite words के जोड़े बनाओ. You have to match the opposite words. Okay ma? पीछे आगे, कोमल कठोर, प्रशंसा निंदा, मजबूत कमजोर, नीची ऊंची. Now right hand side children, सुंदर असुंदर, सफल असफल, बदसूरत खूबसूरत, दुखी सुखी, स्वच्छ अस्वच्छ. Now children, again I will tell the meanings of these opposite words. पीछे आगे, back front, कोमल कठोर, सॉफ्ट हार्ड, प्रशंसा निंदा, praise hate, मजबूत कमजोर, strong weak, नीची ऊंची, down up, सुंदर ब्यूटीफुल, असुंदर ugly, सफल सक्सेस, असफल अनसक्सेस, बदसूरत ugly, खूबसूरत ब्यूटीफुल, दुखी सैड, सुखी हैप्पी, स्वच्छ क्लीन, अस्वच्छ इज अनटाइडी, कठिन हार्ड, सरल इजी. ओके ना. नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन, इन शब्दों से वाक्य पूरे करो. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स. नाउ आई विल रीड आउट द वर्ड्स चिल्ड्रन. इसलिए, या, और, क्योंकि, परंतु. नाउ आई विल रीड आउट द सेंटेंस. का, शेर हाथी और बारहसिंगा भाग रहे थे. और माने and. Okay, lion, elephant and बारहसिंगा reindeer were running. का, बारहसिंगा के सींग फंस गए थे, इसलिए वह भाग न पाया. Okay, the reindeer horns got stuck, so it was not able to run. इसलिए माने so that. Now आज प्राणों बचेंगे या जाएंगे. Today can I save my life or not? Okay मा, या माने वो और आर. गा, बारहसिंगा पकड़ा जाता क्योंकि वह भाग ना सकता था. Children, the बारहसिंगा going to get caught. क्योंकि why? Because it was not able to run. उसके सींग सुंदर थे परंतु पैर बदसूरत. Its horns are beautiful but, परंतु माने but, legs are ugly. Okay children. Now children, और, इसलिए, या, क्योंकि, परंतु, और, and, इसलिए so only, या, वो और आर, क्योंकि why? Because, परंतु but. योजक है. योजक माने इट्स लाइक ए ब्रिज. ओके ना. क्योंकि ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं. सो दिस योजक वर्ड्स आर हेल्प टू कनेक्ट द टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स. ओके, सो दिस इज योजक. सो इन these sentences, what are all the योजक children? और, इसलिए, या, क्योंकि, परंतु. ओके ना. नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही शब्द चुनकर कहानी पूरी करो. यू हैव टू पिक द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द स्टोरी. दे आर गिवन द ऑप्शंस इन द फिश. पानी वाटर, उदास सैड, फीका सुनहरे. सुनहरे माने गोल्डन कलर. ओके ना. मिलजुल कर माने टुगेदर. बात माने मैटर, अलग अलग माने डिफरेंट. नाउ चिल्ड्रन, I'll read out the story now. एक मछली तालाब में तैर रही थी. मछली सुनहरे रंग की थी. उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था.
वह सबसे अलग अलग रहती थी, किसी से बात तक न करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में चली गई। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। ओके, उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हो गई। उसने सोचा अब मैं मिलजुल कर रहूंगी। ओके माँ, यस। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। कुछ करने को, दैट इज ए एक्टिविटी। चिल्ड्रन, कुछ पशुओं के नाम की वर्ग पहेली बनाओ। द वन मोर एक्सरसाइज इज, पुरानी पत्रिकाओं माने ओल्ड मैगजीन से पशुओं को चित्र एकत्र करो। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द ओल्ड मैगजीन्स और ये एक परियोजना बनाओ। ओके ना, यस। नाउ फर्स्ट एक्टिविटी, कुछ करने का, कुछ पशुओं के नाम के वर्ग पहेली माने क्रॉसवर्ड्स। ओके, बनाओ। आप नाम ढूंढ कर लिखें। नाउ आई विल रीड आउट द एनिमल्स। ओके, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, वानर, खरगोश, बकरी, बाघ, भेड़िया, चीता, जिराफ, भालू, गाय। Okay, now I have given that word peheli here. So in this we can select the animal words and write. Okay ma? Yes. Now next one children. पुरानी पत्रिकाओं से पशुओं के चित्र एकत्र करो और एक परियोजना बनाओ। You have to make a album. ओके ना, पशुओं के चित्र, नाम, रंग, रूप, भोजन, रहने के स्थान आदि के आधार पर उनका पूरा परिचय लिखकर परियोजना बनाई। ओके, सो यू कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन इन दैट एल्बम एंड यू कैन मेक इट। सो इन दैट एक्टिविटी यू हैव टू स्टिक द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स। पशुओं के चित्र, नाम माने नेम, रंग रूप माने इट्स अपीयरेंस, भोजन माने द फूड ऑफ दोस एनिमल्स, रहने के स्थान माने इट्स लिविंग प्लेस। ओके ना, आदि एक्सेट्रा के आधार पर उनका पूरा परिचय। यू कैन गिव इट्स फुल इंफॉर्मेशन इन दैट एल्बम। ओके, you can do this activity. Okay children, hope you understood this book exercise very well. Kindly subscribe to our channel and give your valuable comments and likes. Thank you children. Dhanyavad.